اور اب خبریں تفصیل سے۔ یورپی یونین اور دیگر ممالک کے سفارتکاروں نے آج کشمیر کا دورہ کیا۔ سفارتکاروں کے وفد نے سول سوسائٹی گروپس، عوامی نمائندے اور مقامی افراد سے ملاقات کی اور زمینی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جموں کشمیر کے موجودہ حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے یورپی یونین سمیت 24 ممالک کے سفارتکاروں کا ایک وفد آج کشمیر کے دورے پر پہنچا۔ سری نگر ایئرپورٹ پر اس وفد کا روایتی انداز میں استقبال کیا گیا اور ارکان پر پھول برسائے گئے۔ اس وفد میں یورپی یونین کے علاوہ دیگر ممالک کے سفارتکار بھی شامل ہیں۔ وادی پہنچنے کے بعد یہ وفد بڈگام ضلع کے ماگام پہنچا، جہاں پر ڈی ڈی سی چیئرمین نذیر خان سمیت دیگر پنچایتی نمائندوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر بیرونی سفارتکاروں کو پنچایتی راج اور حکومت کے دیگر پروگراموں جیسے بیک ٹو ولیج کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ غیر ملکی سفارتکاروں کے وفد نے ڈگری کالج ماگام میں ڈی ڈی سی چیئرمین، سرپنچ، پنچ اور دیگر لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ کشمیر اور خاص کر بڈگام کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی یہاں بات چیت ہوئی۔ سب سے پہلے مدعا رہا کہ 35 اور 370 یہ ہمارا بنیادی حق ہے، بنیادی حقوق بھی ہے، اور اس کے بعد میں یہ جو ڈیولپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم سے، تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ آپ نے جموں کشمیر کے کن علاقوں کا دورہ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا نہ یہاں بجلی ہے، نہ یہاں پانی ہے، نہ یہاں سڑکیں ہیں، نہ یہاں ہیلتھ ہے، نہ یہاں ایگریکلچر ہے، یہاں ان چیزوں سے ہم محروم ہیں۔ مدعے صرف ڈیولپمنٹ، اونلی ڈیولپمنٹ، جس کے لیے ہم کافی ٹائم سے پریشان ہیں، اور اس کوشش میں تھے کہ کہیں ہمیں موقع ملے اپنے ضلع بڈگام کو ترقی کی راہ پر لانے کے لیے۔ اس کے لیے آئے تھے، بات ہو گئی ان کے ساتھ، انہوں نے ہماری بات سنی، چونکہ یہ ایک ترقی یافتہ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس انفراسٹرکچر بہت زبردست ہے ڈیولپمنٹ کرنے کا، چونکہ وی آر ڈیولپنگ ناؤ، اور اس میں بھی ہمارا ضلع بڈگام کافی پسماندہ ہے، تو ہمیں اپنا بات ان کے پاس رکھنے کا موقع ملا۔ ماگام کے بعد غیر ملکی سفارتکاروں نے سری نگر میں ایس ایم سی میئر جنید عظیم متو سمیت ڈی ڈی سی، بی ڈی سی اور میونسپل کونسل چیئرپرسن سے ملاقات کی۔ عوامی نمائندوں نے وفد کو بتایا کہ کشمیر میں جمہوریت مزید مضبوط ہوئی ہے اور امن و امان اور ترقی کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر میں سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ کے لیے سفارتکاروں کا تعاون طلب کیا۔ Realizing, let's say so, is that all what was happening the last year and a little more months is that democracy took place here. Clearly, what we can identify is that the local actors in terms of politics took their places now at the levels of the district, at the level of the blocks, at the level of the tehsils. It's impressive. We are happy already with what happened from the central government in terms of the political decisions they took, and now they have to support more to the people in terms of economics and in terms of health and education. The key issue that was discussed was decentralization of power and planning of the democratic empowerment of the grassroots representatives. I think that was very well appreciated. They spoke to, as I said, elected representatives from all political parties, from the Apni party, from the National Conference, from the PDP, from the Congress, from the People's Conference, and all of them, I think the common denominator was them. All of them said that we had free and fair elections, and free and fair elections is the biggest attestation to the empowerment of democracy. بعد میں اس وقت نے درگاہ حضرت بل پر حاضری دی۔ حضرت بل انتظامیہ نے انہیں حضرت بل کی تاریخی اہمیت سے واقف کروایا۔ یہاں پر وفد کے ارکان نے تصویریں بھی کھنچوائیں۔ غیر ملکی سفارتکاروں نے سری نگر میں سول سوسائٹی کے ارکان سے تبادلہ خیال کیا اور صورتحال سے واقفیت حاصل کی۔ واضح رہے کہ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن ختم کرنے کے بعد غیر ملکی نمائندوں کا یہ تیسرا دورہ ہے۔
ये सिफारतकार एक ऐसे वक्त कश्मीर पहुंचे हैं जब यूटी में डीडीसी इंतखाबात का कामयाब इनेकाद हुआ और हाल ही में 4G इंटरनेट खिदमात बहाल हुई हैं। इस वक्त के अरकान जुमेरात को जम्मू का दौरा करेंगे। गैर मुल्की वफ्द की आमद के तनाजुर में श्रीनगर शहर के चंद इलाकों में जुज़वी हड़ताल रही। लाल चौक समेत शहर खास के कई इलाकों में दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ बंद रहे। अमन व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए हसास मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। इस मौके पर सिर्फ चुनिंदा मीडिया इदारों को ही इन सरगर्मियों के कवरेज की इजाज़त थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों के कश्मीर दौरे के सिलसिले में रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इन सफ़ीरों को मखसूस लोगों के बजाय आम लोगों के साथ मिलने दिया जाना चाहिए था। उनका कहना है कि इससे वो कश्मीर की असल सूरत हाल से वाकिफ हो सकते थे। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे यहिया सुल्तान के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान महबूबा ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत दुनिया को ये तासुर देना चाहती है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम खुश हैं। मुफ्ती ने कहा कि हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के अवाम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। जम्मू कश्मीर के अवाम को गरीब से गरीब तर बनाने के लिए मरकज़ नए कवानीन अमलाने की साजिश कर रही है। जो आना चाहे आ सकते हैं, मगर ये सिलेक्टिवली नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि हमारे जो मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस आना चाहते थे तब उनको आने नहीं दिया, और उसके बाद इसी तरह यूरोपियन यूनियन के सिलेक्टिव जो राइट विंग है, जिनका झुकाव जो है उस तरफ है, तो उनको लाया गया और बड़ा ही गाइडेड टूर था। यहाँ जब बाहर से लोग आए तो उनको आम लोगों से मिलने देना चाहिए, कि उनका डिक्टेट नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना है, क्योंकि जो असली हालात है जम्मू कश्मीर के वो बाहर आने नहीं दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि बाहर मैसेज चला जाए कि 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में लोग बड़े खुश हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर पहाड़ गिर पड़ा है मुसीबत का। जब से 370 खत्म हो गया, हमारा कारोबार ठप है, हमारे ट्रांसपोर्टर सफ़र कर रहे हैं, हमारी मेवा इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया इन्होंने, मुलाजिमों को 48 साल की उम्र में रिटायर करना चाहते हैं। यानी बहुत बड़ी साजिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना सताओ, इतना उनको गरीब कर दो कि वो मसले कश्मीर की बात ना करे, 370 की बात ना करे। तो उसी कड़ी का ये सिलसिला है जो बाहर से यूरोपियन यूनियन के लोगों को लाया है। उनको दिखाया जाए, नुमाइश की जाए कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, हालांकि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक बिल्कुल नहीं है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों को इतना डर दिल में बिठा दिया है, क्योंकि जो बात करता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, बाहर के जेलों में ले जाते हैं। पहली बात तो कि हमें बात करनी, अपनी आवाज़ उठानी, जैसे भी बांडीपोरा में वो बच्ची का हो गया, बात की तो मैंने सुना आज पकड़ लिया उनको, जो उसमें मुलविस लोग थे उनको पुलिस ने पकड़ के लाया है। अपने का स्टेट हुड की हम वापसी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरा जो गैर कानूनी तौर लिया गया नहीं, जो स्टेट हुड चाहते हैं वो तो अलग चीज़ है, उनसे बात कर लें। हम तो चाहते हैं कि जो हमसे हमारा जो वकार, हमारी इज्जत, हमारा तशख़्ख़ुस जो इन्होंने हमसे छीन लिया, जिस पे डाकाज़नी की, वो वापस मिलना चाहिए। और जो मसले कश्मीर है जिसकी वजह से यहाँ हज़ारों के तादाद में लोग शहीद हो गए हैं, इतना नुकसान हुआ है, कश्मीरी जो है बर्बाद हो गया, इतने सालों में मुसीबत में है, तो उसका इजाला करने के लिए, कश्मीर के मसले के हल करने के बगैर वो कोई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर का कहना है कि गैर मुल्की वफ्द का जम्मू कश्मीर का दौरा लाहासिल है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जी मीर शेरवानी हॉल बारामूला में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन के खिताब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। जी मीर ने कहा कि मरकजी हुकूमत को गैर मुल्की वफ्द के अलावा मुल्क के अरकान पार्लिमान और मकामी सियासी लीडरों को हालात का जायज़ा लेने का मौका देना चाहिए। जी मीर ने कन्वेंशन के दौरान पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करने वर्करों पर जोर दिया। जी मीर ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतें कम हैं, मुल्क में पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा हैं। जी मीर ने मज़ीद कहा कि दफ़ा 370, 35A और रियासत का दर्जा बहस का मौजू है और मरकज़ी हुकूमत अवामी नुमाइंदों की राय बगैर यकतरफा फैसले नहीं कर सकती। उसको तो वो अलाउ करते नहीं, और अपने लोकल यहाँ लीडर्स को मूवमेंट नहीं अलाउ करते हैं, ताकि लोगों को आउटरीच हो, लोगों की बात सुनी जाए, तो उनको भी लगे कि कोई हमारा हमदर्द है। तो ना लोकल लीडरों को अलाउ कर रहे हैं, ना पार्लियामेंटेरियन को अलाउ कर रहे हैं। तो ये फॉरेन डेलीगेशंस ला कर मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा फायदा होगा। पेट्रोल जो इस वक्त
जम्मू कश्मीर वासियों को 50 और 55 रुपए में मिलना चाहिए था लीटर, वो इस वक्त 95 रुपए से क्रॉस कर गया। तो इसका बीच में जो मार्जिन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस के जरिए से कलेक्ट कर रहा है, उसका फायदा जम्मू कश्मीर को नहीं, उसके अपने दोस्त हो रहा है। ये जो जनरल इश्यूज है आम लोगों के, उनको हम जगह जगह हाईलाइट करके सरकार को याददाश्त देंगे कि भाई ये तकलीफें हैं लोगों के, इसमें आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें कमी लाओ। कांग्रेस लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सूस का कहना है कि गैर मुल्की सिफारतकारों का वफ्द कश्मीर के मौसम का लुत्फ उठाएगा और डल झील की सैर करेगा और चला जाएगा, लेकिन हुकूमत को इस पहल का खातिर ख्वाह फायदा नहीं मिलेगा। सोज ने कहा कि हुकूमत को सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात करनी चाहिए। Visits Government of India has been organizing almost every year, and they come here, enjoy the beauty of Kashmir. They will go to Dal Lake, and ultimately they will not do anything and get back to their countries. These are hand-picked envoys by Government of India, but somebody will, you see, try to understand the truth in Kashmir. All manner of people in Kashmir, that means real Kashmiris, are totally angry, and they will never accept abrogation of 370, and they will democratically, constitutionally fight for restoration of their special status. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर रफ़ी अहमद मीर का कहना है कि अगर किसी सतह पर हमें अपना नुक्ता नज़र पेश करने का मौका मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। ताहम उन्होंने कहा कि पिछले वफूद के दौरों से हमारी मांगों को हल करने में मदद नहीं मिली है कि ये अपनी तौर से आए हैं कि किसी सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई हैं। जब भी डेलीगेशन आती है लोगों की उम्मीद ये होती है कि हमारा नुक्ता निगाह जो है, हमारा व्यू पॉइंट है जो आगे ठीक तरीके से लिया जाएगा। लेकिन अगर ये चौथा डेलीगेशन आप मान रहे हैं तो अभी तक जितने भी डेलीगेशन आए, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो हमारी डिमांड्स है उसको अभी तक कोई इसमें हल करने में अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद भी डेलीगेशन एक जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा है। अगर वो यहाँ पर आए, यहाँ पे सही बात सुनकर किसी फोरम में हमारे हालात, वाक़ात और हमारी राय को ले सकते हैं। तो बीजेपी ने गैर मुल्की वफ्द के दौरे का खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि ये अच्छी पहल है जिसके जरिए आलमी बरादरी को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी और यहाँ के हालात मामूल पर लौट रहे हैं। रविंद्र रैना ने कश्मीर की गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने पर पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की। सतह पर पाकिस्तान झूठ बोलता है कश्मीर के मसले पर, और आज जब कश्मीर के अंदर खुशहाली है, जम्मू में खुशहाली है, तो पाकिस्तान को यह हाज़म नहीं हो रहा। फॉरेन डिप्लोमेट्स आएंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, डीडीसी, बीडीसी, पंचिस, सरपंचिस, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिलेंगे, आम लोगों से मिलेंगे, नामानिगारों से मिलेंगे, फिर जम्मू में आके मिलेंगे, तो उनको भी हकीकत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को हम सारी दुनिया के सामने उजागर करें कि पाकिस्तान झूठ बोलता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने रियासती दर्जे के हवाले से बयान पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक मीटिंग से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा, महबूबा मुफ्ती कश्मीर को एक कब्रिस्तान में तब्दील करना चाहती हैं। अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी दौरे हुकूमत में लूट मार के भी संगीन इल्जामात आयद किए। वाज़ेह है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कल कहा था कि हम रियासत के दर्जे की बहाली नहीं बल्कि कश्मीर मसले का हल चाहते हैं। कब्रिस्तान चाहती है, हमारे लोगों को क्या कहना चाहती है, वो कौन सी सियासत कर रही है, किसके एमा पे कर रही है। ये 1947 नहीं है, ये 1953 नहीं है, ये न 1959 है, आज 2021 है। हम सब ने खुली आंखों से वो कुछ देखा है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। वो नंगा नाच जहां हमारी बहनों, माओं और नौजवानों के कपड़े उतारे गए, जिस दिन हमारी स्टेटहुड खत्म की गई, वो इस पार्टी की बदौलत हुआ जिन्होंने यहां उस सरकार को लाया जिनके एजेंडा पे 72 साल था कि हम 370 और 35 से हटाएंगे। वो आज मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं।
क्या वो उन 5 घरों की सियासत पे कर रही है, जिन 5 घरों को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको वो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार कहते हैं? ये क्या नया नाटक है? क्या ये ए टीम का नाटक है? सबको बी टीम कहती है, खुद ए टीम है ना। कौन नहीं चाहता है स्टेटहुड? उस पार्टी की सरबराह के बिना सब क्या वो हमको उजाड़ हुई इस चमन को ही देखना चाहती है? आप तो लुटेरों से भी बड़ी लुटेरी थी। आज जब हम सुनते हैं कि आपने लूट खसूट जो किया है, हमें शर्म आती है। क्या हम खड़े थे आपके साथ? ये नई साजिश कि हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के लिए कायम हदबंदी कमीशन की कल दिल्ली में पहली मीटिंग होगी। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 अरकान पार्लियामेंट इस मीटिंग का बायकॉट करेंगे। जम्मू कश्मीर के 5 अरकान पार्लियामेंट को कमीशन में एसोसिएट मेंबर के तौर पर नामजद किया गया है, जिनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 और बीजेपी के 2 एमपीज शामिल हैं। कश्मीर में 22 फरवरी से ट्रेन खदमात बहाल हो रही हैं। कोविड वबा की वजह से ट्रेन खदमात को मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीबन 1 साल बाद अब वादी में दोबारा ट्रेन चलेगी। फिलहाल जुज़वी तौर पर ट्रेन सर्विस शुरू की जा रही है। बारामूला और बानिहाल के बीच ट्रेन चलेगी। बारामूला से सुबह 9:10 पर ट्रेन चलेगी और बानिहाल से 11:25 पर रवाना होगी। बताया जाता है कि बानिहाल और बारामूला के दरमियान मजीद 3 रेलगाड़ियों को चलाने की भी तजवीज़ है। अवंतीपुरा पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने एक मुसद्दक़ तला मिलने पर बडगुन त्राल और डाटसरा से 3 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए हैं। उनका ताल्लुक हिज़्बुल मुजाहिदीन से बताया गया है। गिरफ्तार अफराद से कुछ काबिल एतराज़ मवाद जब्त किया गया है। इस हवाले से एक केस दर्ज किया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार अफराद की पहचान शिफात अहमद सूफ़ी, माजिद मोहम्मद भट्ट और उमर रशीद वानी के तौर पर हुई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।